ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. દિવાળીબેન પ્રાથમિક શાળા ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે વિષય હિન્દી પાઠ 6 તૂફાનો કી ઓર સમજીશું અને તેના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીશું. તૂફાનો કી ઓર એના કવિ છે શિવમંગલસિંહ. તેનું ઉપનામ છે સુમન. જન્મતિથિ 5 અગસ્ત 1915. જન્મસ્થાન જંગરપુર, જિલ્લા ઉન્નાગાંવ, ઉત્તર પ્રદેશ. मृत्युतिथि 27 नवंबर 2002. कविश्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की पदवी प्राप्त की. अनेक अध्यापन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की. 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया. 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया. उनकी प्रमुख कृतियों में हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विद्य हिमाचल, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा है. इकाई 6 तूफानों की ओर कविता. હવે આપણે આ કવિતાને સારી રીતે સમજીએ. તૂફાનો કી ઓર એટલે કે અહીં નાવિક એમ કહે છે કે મારી હોડી ત્યાં લઈ જા કે જ્યાં તોફાન છે. જ્યાં આગળ સામાન્ય રીતે હોડી ચલાવવાની નથી, પરંતુ તોફાનોનો સામનો કરી અને પછી મારે હોડી ચલાવવાની છે. મારામાં કેટલી તાકાત છે તોફાનોનો સામનો કરવાની તે મને ખબર પડે. તે માટે હે નાવિક, તું મારી હોડી ત્યાં લઈ જા જ્યાં આગળ તોફાનો છે. એવું અહીં કહેવાયું છે. તૂફાનો કી ઓર ઘુમા દો નાવિક નિજ પતવાર. પતવાર એટલે હોડી ચલાવવાનું સાધન. અહીં નાવિકને કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં આગળ તોફાન છે એ બાજુ મારું હોડી લઈ જા. હોડી ચલાવવાના સાધન દ્વારા તે બાજુ હોડી વાળી દે. આજ સિંધુ ને વિષ ઉગલા હૈ, લહરો કા યૌવન મચલા હૈ. આજ સિંધુ એટલે સમુદ્રએ વિષ ઉગલ્યું એટલે કે ઝેરી બન્યો છે, અને લહેરોને પણ યૌવન એટલે કે યુવાની આવી છે. આજ હૃદય મેં ઓર સિંધુ મેં સાથ ઉઠા હૈ જ્વર. આજે હૃદયમાં અને સમુદ્રમાં બંનેમાં એક સાથે જ્વર એટલે કે તોફાન ઉમટ્યું છે. એટલા માટે હે નાવિક, તું મારી હોડી ત્યાં લઈ જા જ્યાં આગળ તોફાનોનો સામનો કરવાનો છે. તૂફાનો કી ઓર ઘુમા દો નાવિક નિજ પતવાર. હવે નાવિકને તે આગળ કહે છે કે જ્યાં તોફાનો છે ત્યાં મારી હોડી લઈ જા. શા માટે એવું કહે છે? લહેરો કે સ્વર મેં કુછ બોલો, ઇસ અંધણ બે સાહસ તોલો. લહેરો ઊંચી ઊંચી વાય છે એટલે કે લહેરોએ ઊંચું રૂપ ધારણ કર્યું છે. અંધળ એટલે કે તોફાનનું રૂપ ધારણ કર્યું છે, તો તેમાં મારો સાહસ કેટલો છે તે પણ મને ખબર પડશે. કભી કભી મિલતા જીવન મેં તૂફાનો કા પ્યાર. ક્યારેક જ આવી પરિસ્થિતિ આવે છે. રોજ તો આપણે સામાન્ય જીવન જીવીએ છીએ, પરંતુ ક્યારેક એવી પરિસ્થિતિ આવે છે કે જ્યારે આપણે તોફાનોનો સામનો કરવો પડે છે. એટલા માટે હે નાવિક, તું મારી હોડી ત્યાં લઈ જા જ્યાં આગળ તોફાન છે. તૂફાનો કી ઓર ઘુમા દો નાવિક નિજ પતવાર. હવે આગળ નાવિકને કહેવાયું છે કે તું મારી હોડી તોફાનો છે ત્યાં આગળ લઈ જા. શા માટે? યહ અસીમ નિજ સીમા જાને, સાગર ભી તો યહ પહચાને. અસીમ એટલે જેની કોઈ સીમા નથી એવો સમુદ્ર. સમુદ્ર પણ એ જાણે કે મારા માનવમાં કેટલી શક્તિ છે. મિટ્ટી કે પુતલે માનવને કભી ન માની હાર. મનુષ્ય જ એક એવો વ્યક્તિ છે કે જેને બુદ્ધિ મળી છે, તો તેણે કોઈ દિવસ હાર માની નથી, અને જેટલો તોફાનોમાં એની તાકાત છે એટલો સામનો કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે આપણે પણ આપણા જિંદગીમાં જીવનમાં આવતા તોફાનોનો સામનો કરવો જોઈએ, અને એ તોફાનોનો સામનો કરી અને સારી રીતે પાર ઉતરવું જોઈએ. એ તોફાનોથી આગળ વધી અને આપણું જીવન
ઉન્નત બનાવવું જોઈએ, આપણા લક્ષ્ય સુધી પહોંચવું જોઈએ, એવું આપણને આ કવિતામાંથી શીખવા મળે છે. સાગર કી અપની ક્ષમતા હૈ, પર માઝી ભી કબ થકતા હૈ. સમુદ્રમાં જેટલી તાકાત છે, ક્ષમતા એટલે તાકાત, જેટલી તાકાત છે એ તાકાતે તેણે રૌદ્રરૂપ એટલે કે તોફાન ધારણ કર્યું છે. પણ માઝી એટલે કે હોડી ચલાવનાર પણ ક્યારેય થાકતો નથી. જબ તક સાંસો મેં સ્પંદન હૈ, ઉસકા હાથ નહીં રૂકતા હૈ. ઇસકે હી બલ પર ડાલે સાતો સાગર પાર. જ્યાં સુધી એના હાથમાં તાકાત છે ત્યાં સુધી તે પતવાર ચલાવવાનું રોકતો નથી. થાકીને બેસી નથી જતો કે જે થવું હશે થશે, પણ તેનો આખરી શ્વાસ સુધી તે મહેનત કરે છે હોડી ચલાવવાની, તોફાનોથી બહાર આવવાની. તૂફાનો કી ઓર ઘુમા દો નાવિક નિજ પતવાર. એટલે માઝી એટલે કે જે હોડી ચલાવનાર છે એટલામાં કેટલી તાકાત છે એ સમુદ્ર પણ આજે જાણી લે. કે મનુષ્ય મિટ્ટી કે પુતલે એટલે કે માટીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું અનાજ ખાનાર મનુષ્ય છે એને મિટ્ટી કે પુતલે કહેવામાં આવ્યો છે. તો એવો મિટ્ટી કે પુતલેમાં કેટલી તાકાત છે તે સમુદ્ર પણ જાણી લે અને ઓળખી લે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કવિતા સમજી. હવે તે કવિતાના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય વિશે ચર્ચા કરીએ. ધોરણ 8 તૂફાનો કી ઓર. આ જે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ તે તમારે હિન્દીની પાકી નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાના રહેશે. તે તમારું આજનું લેશન છે તે યાદ રાખજો. હવે જોઈએ પાઠ 6 તૂફાનો કી ઓર અભ્યાસ. પ્રશ્ન 1 શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કીજીએ. આ જે શબ્દો આપેલા છે તે તમારે શુદ્ધ ઉચ્ચારણથી બોલવાના છે. એટલે એક વખત તમારે તમારી પાકી નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાના છે. શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કેવી રીતે થાય છે તે પણ સાંભળજો. તૂફાન, સિંધુ, યૌવન, હૃદય, અંધડ, મિટ્ટી, સ્પંદન. प्रश्न 2 तूफानों की ओर काव्य का समूह गान कीजिए. જેનો હું તમને પછી વિડીયો મોકલીશ તે તમારે સાંભળીને ગાવાનું છે. સમૂહમાં નહીં પણ તમે એકલા તો ગાઈ જ શકશો. એટલે તમારે તે ગીત ગાય અને પાકું કરવાનું છે પરીક્ષા માટે. प्रश्न 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ क्या है? इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है. ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को पहचानना चाहिए. प्रश्न 4 कविता को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्न 3 फरीवार આપણે સમજીએ. प्रश्न 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहलू तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है. कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है. कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है. जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है. उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तूफानों की ओर तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो. सवाल 2 सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात की गई है? उत्तर सागर भी तो यह पहचाने इस काव्य में वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है. कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो. सवाल 3 समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए. शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए.
सवाल 4, इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ क्या है? इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। प्रश्न 4, कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लीजिए। कविता, किताबें कुछ कहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है। किताबों में खेतियाँ लहलहाती है। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। परियों के किस्से सुनाती है। किताबों में रॉकेट का राज है। किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है। आ તમારે कविता वाँची અને તેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। प्रश्न के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किताबों में कौन चहचहाता है? जवाब, चिड़िया। किताबें किसके किस्से सुनाती है? जवाब, परिया। किताबों में किसके लहलहाने की बात की गई है? उत्तर, खेतिया। कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। परिया। उत्तर, परिया स्वर्ग में रहती है। किस्सा, राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया। संसार, उद्यम से आपके संसार में 4 चांद लग गए। परमार, मेले में खिलौनों की भरमार थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किताबों में क्या क्या है? उत्तर, किताबों में चिड़ियों की चहचहाहट, खेतियों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है। वे हमारा मनोरंजन भी करती है। इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर, किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान मिलता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें ही देती है। धर्म और आध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक है किताबें। प्रश्न 5, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाइए। सुबह, घर, मेला, खिलौने वाला, ढेर सारे, बच्चे, जगाना, खरीदा, खुश, मुर्गा, रात, बक्सा, बांग। આ બધા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી તમારે નાની એવી વાર્તા બનાવવાની છે અને એ વાર્તામાં જ્યાં જ્યાં આ બધા શબ્દો આવે ત્યાં અંડરલાઈન કરવાની છે। भोलू नाम का एक लड़का था। नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से बहुत भोला था। एक दिन वह अपनी माँ से पैसे लेकर पास के गांव में मेले में गया। साथ में उनका बड़ा भाई भी था।
मेले में भालू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। भोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले से एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गे के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था। रात में उसने माँ से कहा, माँ, तू सवेरा होने पर मुझे मत जगाना। मुर्गा बांग देगा तो मैं अपने आप ही जागूंगा। माँ मुस्कुराई और चुप रही। આવી રીતે તમારે એક કહાની બનાવવાની છે। सवेरा हुआ, सूरज भी निकला। भोलू बहुत देर तक न उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी? माँ बोली, अरे भोलू, तू सचमुच बहुत भोला है। भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बांग दे सकता है? यह सुनकर भोलू की सारी खुशी छूमंतर हो गई। प्रश्न 6। आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए। उत्तर। આમાં તમારે પોતાના જવાબ છે એ વિચારીને લખવાના છે। બધાના જવાબ છે એ અલગ અલગ પણ હોઈ શકે છે। मेरे गांव में बाढ़ आए तो मैं अपने गांव में ही रहूँगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूँगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की हर तरह से सहायता करूँगा। मैं यथाशक्ति उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूँगा। उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहसपूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूँगा। प्रश्न 7। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। विशेषण ईमानदारी। હવે ઈમાનદારી લઈ અને તમારે એક વાક્ય બનાવવાનું છે। એનું ઈમાનદારીનું વિશેષણ થશે ईमानदार। यह ईमानदार व्यक्ति है। हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। उत्तर, अमीरी अमीर। इस होटल में अमीर लोग ही जाते हैं। हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। ऊंचाई, ऊंचा। योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है। लक्ष्मीबाई वीरतापूर्ण लड़ी। वीरता, वीर। शिवाजी वीर पुरुष थे। दूसरों की बुराई करना पाप है। बुराई, बुरा। हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। निम्नलिखित कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाक्य, गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। राकेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछताना पड़ा। उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। स्वाध्याय प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है? उत्तर, कवि सिंहमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। उसने कभी हार नहीं मानी। वह थकना नहीं जानता। जब तक उसके सांसों में स्पंदन है, सांस है, तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसकी परीक्षा है। कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है? अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। ज्वर कहाँ कहाँ उठा है? एक ओर समुद्र में ज्वर उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वर उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि के हृदय दोनों स्थानों में ज्वर उठा है। समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? समुद्र में बड़े जोरों का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जो उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वर से बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी सीमा असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों में जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र और रौद्र रूप धारण किया है। कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? उत्तर, मनुष्य धरती पर जन्म लेता है। वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर वह उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। माझी कब हाथ तक नहीं थकता। समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है तब तक उसकी सांसों में चेतना है। तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता है। यह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया है कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों, कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि यह कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है। इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे।
વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણું પાઠ 6 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના ચર્ચા પૂર્ણ થાય છે. હવે તમારે આ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય સારા અક્ષરે હિન્દીની પાકી નોટમાં લખવાના છે. સૌથી પહેલાં કવિતાનું નામ લખી અને તે કવિતા લખવાની છે, પછી શબ્દાર્થ લખવાના છે અને પછી અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય લખવાના છે. તે તમારું આજનું ઘરકામ છે. ઓકે, થેન્ક યુ.